back to Sunraj Education. I hope every one of you is fit and fine and all of you are concentrating on your studies and you are well preparing for your upcoming exams. UGC नेट सीरीज में आज हमारा टॉपिक है यूनिट 2 दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी एंड अदर टॉपिक इज significance of OB. Before understanding what is concept and what is the significance of organizational behavior, first of all, let us all study what do we understand by the term organization. What do we understand or what do we know about the word organization? हम किसको बोलते हैं organization? So, जब दो या फिर दो से ज्यादा two or more than two individuals work together as a team or as a group to achieve one specific goal or one specific objective. Conscious interaction between two or more than individuals when they work together in a team to achieve one specific goal or one specific objective. We term this as an organization. ठीक है, ये है the concept of organization. So after understanding what is organization, अब organization में दो individuals काम कर रहे हैं, दो teams काम कर रही हैं, दो groups हैं, employees हैं, दो departments हैं. Everybody is working. One department. Everybody is working to achieve one goal. इसका बिहेवियर अलग होगा, इसका बिहेवियर अलग होगा, इन सबका बिहेवियर एक दूसरे के साथ अलग होगा. प्लस व्हेन दे आर वर्किंग इन अ टीम तभी भी इनका बिहेवियर अलग होगा. So whenever you are working in any kind of institute, in any organization, there are some set of rules you have to follow. There are some set of behavior you have to follow. You have to act according to those behavior. तो वो behavior कौन से होते हैं? Those are organizational behavior. How do you act in an organization? How do you behave with your fellow workers, with your fellow employees or with your fellow team? वो कौन हमें बताता है? हमें बताता है organizational behavior. Organizational behavior एक तरीके की behavioral science है जो कि 3 स्टडीज को ऐड करके ओबी बनाती है. वो 3 स्टडीज कौन सी है? सबसे पहली है सोशियोलॉजी, where we study about the society. Then psychology, where we study about individual minds and individual behavior. And third one is anthropology, where we study about the humans, the human behavior, human act, how human perform in different kind of situations. So when we add these 3 theories, we get the organizational behavior theories. So इसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं. इसमें हम इंडिविजुअल की वैल्यू, how they perceive things, their attitude, हम इनके बारे में पढ़ते हैं. एंथ्रोपोलॉजी में we study about the humans, their
behavior and their act. So इन 3 चीजों को ऐड करके हमारी बनती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. यूजुअली हम ये कहते हैं कि हम जिस तरीके से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हाउ वी आर हैंडलिंग एवरीथिंग, हाउ वी आर वर्किंग. सो हु ऑल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन? ह्यूमंस. एवरी थ्योरी, every single aspect or all the functions revolve around one element, that is human. Sociology, psychology, anthropology, तीनों behavioral science किसके ऊपर एक्ट करती हैं? ह्यूमंस के ऊपर. हाउ टू टैकल और हाउ टू हेल्प इंडिविजुअल, हाउ टू हेल्प ह्यूमन to build their work properly and to achieve one goal. ठीक है? So next point is, what is the significance of organizational behavior? अब जब मैनेजर है, जब वो काम कर रहा है या काम करवा रहा है, तो उसको अपने इंडिविजुअल्स, अपने एम्प्लॉयज को समझना पड़ेगा. व्हाट दे वांट, हाउ मच दे वांट, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहला हमारा सिग्निफिकेंस में पॉइंट क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? बाय communicating with them, by boosting their morale, by understanding what is the problem and how to solve that problem. Second significance हमारा क्या है? अब इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय की हर एक बात को सुनेगा और वो उसकी हर एक बात को मानेगा. इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल टू वर्क अकॉर्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? तो अननेसेसरी वांट्स, अननेसेसरी डिमांड्स एंड अननेसेसरी नीड्स को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयज के जितने भी काम हैं, एम्प्लॉयज की जितनी भी एनर्जी है, उनको डायरेक्ट करना टू अचीव द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज so that all their energies, all their pathways should be directed toward the one organizational goal. And third one is organizational adaptation. This is the duty of manager to make all the employees understand that no organization works in isolation. कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले में काम नहीं करती है. मैं एक साइड में चेयर पर बैठी हूँ and I'm just doing my own work. That is not what organization is meant for. You have to contact with all the individual working in your group. You have to interact all the teams working with your teams. You have to greet people. You have to meet people. You have to work with them. You cannot work in isolation. Whenever you are shifting or whenever you are joining a new company, it is the moral duty of all the managers and all the humans who are working in that organization to make the new employee comfortable and to help them adapt the organizational environment. हर इंस्टीट्यूट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जो कि हर एम्प्लॉय को समझना, उसको अडेप्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दैट एम्प्लॉयज वर्क.
ये था सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट कौन सी थ्योरीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऐड होती हैं, बिहेवियरल साइंस कौन सी हैं। आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ दिस वन मोर थिंग कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ह्यूमंस को किस तरीके से टैकल करना है, बिहेवियर कैसे समझना है, उनको कैसे हेल्प करनी है ऑर्गेनाइजेशन को अडाप्ट करने में। बट हमें ये समझना अभी जरूरी है कि जो ओबी की स्टडी है वो कहाँ अप्लाई होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कौन से स्टेप्स के ऊपर काम करता है, या जो स्टडी है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहले वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल, देन वी टॉक अबाउट ग्रुप, and third we talk about interpersonal group. We study organizational behavior on these three platforms. Number one is individual. When we say that we are studying OB at individual level, it means हम इंडिविजुअल के एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, उसकी परसेप्शन एंड वैल्यूज, इन 4 चीजों के ऊपर हम किसी भी एक इंडिविजुअल को जज करते हैं। How they are perceiving things, what his or her personality is while he is working in the organization, what kind of attitude he is showing when he is on his job, and his or her basic general values. इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि ये जो 4 चीजें हैं इसके ऊपर हम किसी भी एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन ऑन ग्रुप में हम लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक्स, इनके ऊपर बात करते हैं। टीम स्पिरिट की हम बात करते हैं, हाउ दे आर हैंडलिंग दी टीम व्हेन दे आर वर्किंग इन टीम, स्पोर्ट्समैनशिप कैसी है। एंड थर्ड वन इज इंटरपर्सनल ग्रुप। इंटरपर्सनल ग्रुप मीन्स व्हेन वन ग्रुप इज इंटरैक्टिंग विद अदर ग्रुप। एक ग्रुप में आप काम कर रहे हो, बट जब आपको एक ग्रुप के लोगों को दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द सिमिलैरिटीज यू बोथ हैव, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो ये था हमारा टोटल आज का टॉपिक, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड कि ओबी कौन से लेवल के ऊपर स्टडी करता है किसी भी एक ह्यूमन को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और एनी काइंड ऑफ क्वेरी ऑन दिस टॉपिक और अदर टॉपिक्स जो अभी तक हमारे चैनल पे आ चुके हैं, काइंडली DM us or you can contact us on the given numbers below. And don't forget to hit the bell icon and subscribe my channel.